First thing first, I will request all the speakers to switch off their mic. You please switch on your cameras. That is absolutely not a problem. But switch off your mic so that whoever is the speaker, when he is speaking, so there will be no disturbance. Uh, I, on behalf of the School of Philosophy and Culture, as well as on behalf of Ek Bharat Shresth Bharat at Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, welcome all the participants and guests today. We are joined by very good collection, I will say, or a very good, I will say, list of speakers whom we have. The updated list of speakers will be, and this is the chronology which we will be following today, will be Dr. Gurcharan Singh ji, उसके बाद श्री गुरदीप सिंह जी, then we will have Shri Navtesh Singh ji, उसके बाद श्री संदीप सिंह जी, then we will have Dr. Bhupinder Singh ji, then we will have Shri Inayat Gul Sahab, and last but not the least, Shri Paramjeet Singh ji. We are celebrating today, and if I go wrong, kindly correct me, the 552nd birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. And as I was discussing with the speakers a little bit before we started with the formal proceedings, that the World Philosophy Day, which is celebrated across the world by UNESCO, is coinciding with the third Thursday of the month of November. And that is the speculative date of the birth of Socrates, who is considered as one of the stalwarts of philosophy in the Western tradition. But it is not only the case of Socrates, and since the date is something which cannot be pinpointed, so they have found that it must have been the Thursday, the third Thursday of the month of November. नाउ वर्ल्ड फिलोसफी डे और उसके सेलिब्रेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, और हम भी एट स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड कल्चर सेलिब्रेट इट. But then we also conceived a webinar for today, that is 19th of November 2021, and that was on the teachings and preachings of Guru Nanak Dev Ji, who is the first guru of the Sikh tradition. And I was also discussing the same, and it is really an honor and as well as a pleasure ki few times, very few times, seldom you will find that a person who is basically having a philosophy to touch the, say, concrete level of the world is also becoming a religious guru and gives birth to a religion. तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और जो पूरा का पूरा पीस, द मैसेज ऑफ which you can find in the teachings, is something which is amazing. So हमने बोला, and I also discussed with Virendra Bangru ji, who is collaborating with us. He's the regional director of IGNCA New Delhi, and we have a memorandum of understanding with IGNCA, and we are holding this webinar in collaboration with IGNCA. तो जब हमने डिस्कस किया तो हमने सोचा कि ठीक है, we will not go for the World Philosophy Day as such, rather than we will make this as the celebration of World Philosophy Day, as well as the webinar of Guru Nanak Dev Ji. So I welcome all the participants as well as the distinguished speakers today, and we are also joined by a few students as well as faculty members as well as staff members from SMVDU as well as from outside. And I thank you all for joining us today. And I pass on the proceedings, or the, say, the baton of proceedings to Dr. Virendra Bangru Sahab, who will be the coordinator as well as the convener of today's event. So without wasting much of time, I request Virendra Bangru ji to kindly start with the proceedings for today. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रकाश पर्व पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा नानक शाह, इनका जो ज्ञान, दर्शन और जो संदेश है पूरे मानवता के लिए है। और आज हम इसी पर जो ये गोष्ठी हो रही है, उनके जो है संदेश पर, उनके ज्ञान पर, उनके दर्शन पर, और ये जो है एक नया राह सामने सबके लिए प्रस्तुत करेगा। तो आज इसी क्रम में जो हमारे जो वेबिनार है, इसी क्रम में मैं जो है डॉक्टर गुरचरण सिंह जोगी जी को
जो है मैं उनको निवेदन करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर गुरचरण सिंह जोगी जो हैं वो कवि हैं और रिसर्चर है, गुरबानी में उनका रिसर्चर है और उन्होंने इनके कई जो लेख जो प्रकाशित हो चुके हैं और उनके जो कई पुस्तकें भी प्रकाशित है। मैं डॉक्टर गुरचरण सिंह जोगी जी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो हम सबको संबोधन करें। डॉक्टर गुरचरण सिंह जोगी जी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बंगारू जी। और आज बड़ा मुकद्दस दिवस है। आज के दिन के लिए ही भाई गुरदास जी ने ये कहा था, भी सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। पठाया का अर्थ होता है भेजा गया। लोकाई लोगों की पुकार सुन के परमात्मा ने गुरु नानक देव जी को इस धरती पर, इस मातलों पर भेजा। ये भाई गुरदास जी कह रहे हैं। तो भेजा किस लिए? किसी मिशन के लिए अगर किसी को भेजा जाता है तो वहाँ के जो राजनीतिक, वहाँ के जो आर्थिक, वहाँ के जो धार्मिक, वहाँ के जो सभ्याचारक सामाजिक हालात होते हैं, इसका मतलब उनमें कुछ उथल पुथल होती है, जिसको स्मूथ करने के लिए किसी पैगंबर को भेजा जाता है। पैगंबर की ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ये कहा था, हम एक काज जगत में आए, भी हमें इस कार्य के लिए जगत में भेजा गया। तो भाई गुरदास जी ये कह रहे हैं, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। इस संसार में भेजा गया उनको। तो अगर हम उनकी स्वयं की वाणी पढ़ें, गुरु नानक साहब की, तो वो लिखते हैं आशा की वार में, राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुत्ते, और कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चढ़िया। कूड़ का अंधकार था, झूठ का अंधकार था, और सच का चंद्रमा दिखाई ही नहीं दे रहा था। और अब इसको कोरिलेट करके देखो, गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु नानक देव जी की वाणी ये कह रही है, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चढ़िया। सच का चंद्रमा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, कूड़ की अमावस ही थी। और फिर कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथ वाओ। कलयुग का जो समय था, ये ऐसा रथ था जो अग्नि का रथ था। और इस रथ को चला कौन रहा था? झूठ। कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथ वाओ। इसको झूठ चला रहा था। और काजी होए रिश्वती, वड्डी लेके हक गवाई। गुरु नानक देव जी आगे इसमें लिख रहे हैं, जो धर्म के मुखिया थे वो तो रिश्वतखोर हो गए थे, और रिश्वत लेके हक दे नहीं रहे थे किसी को। तो ये हालात गुरु नानक साहब खुद बयान कर रहे हैं अपनी आशा की वार में, ये हालात थे। और फिर गुरु नानक जग माए पठाया। आप कोरिलेट करके देखो भाई गुरदास जी की वार को। ये कारण थे कि पैगंबर की ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे आप, ये तो सच्ची सरकार की बात है, जो हमारे देश की सरकारें होती हैं, अगर कहीं कोई कंट्रोवर्सी होती है तो ऑफिसर्स को डिप्यूट कर दिया जाता है, आप वहां जाओ। तो ऐसे जो पैगंबर होते हैं, पैगंबर प्रॉफिट जो होते हैं, वो छोटे काम के लिए नहीं आते ना, उनके पास छोटा मिशन होता है। तो वीरेंद्र जी ने मेरा तारुफ एज ए पोइट करवाया है, तो मैं अपनी एक कविता के जरिए पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा भी गुरु नानक साहब का मिशन क्या था। की कविता, फिर मैं अपना जितना मुझे समय दिया जाएगा, मैं उस समय के दायरे में ही, क्योंकि हमारे पास वक्ता बहुत हैं, और मैं इन सभी के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि ये गुरु नानक की फिलॉसफी ही है भी जब लग दुनिया रही है, नानक किछ सुनिए किछ कही है। भी जब तक हमने इस जहान में रहना है, इस जगत में रहना है, हमें विचारों का आदान प्रदान करना होगा। हर समस्या का हल डायलॉग फिलॉसफी से है, और गुरु नानक ने सबसे पहले हमें डायलॉग फिलॉसफी दी और ये कहा, रोष न कीजिए उत्तर दीजिए। बल्कि आप लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, जो सवाल है उसका जवाब दो। ये जो प्रश्नोत्तरी शैली गुरु नानक साहब ने, आप जपजी साहब की उनकी वाणी देखो,
तो पहला क्वेश्चन ही उसमें ये किया गया है, किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टूटे पाल। दो बुनियादी प्रश्न रखे गुरु नानक साहब ने। हम सच्चे कैसे बने, और हमारे अंदर जो झूठ की दीवार है जो बहुत मजबूत है, इसको कैसे तोड़ा जाए। किव सचियारा हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, किव कूड़े टूटे पाल। पाल होती है दीवार, झूठ की दीवार हमारे अंदर। इसकी कई परतें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के गारे मिट्टी से, सीमेंट से बनी हुई ये मजबूत दीवार है। इसको कैसे तोड़ा जाए। अगर ये दो बुनियादी क्वेश्चन हल कर ले बंदा, तो सचियार बन सकता है। तो उसका आगे फिर एलेबोरेशन, उसकी व्याख्या है पूरे जपजी साहब में, और जपजी साहब की व्याख्या पूरे गुरु ग्रंथ साहब में है। अब ये देखो, मूल मंत्र की व्याख्या जपजी साहब में, और जपजी साहब की व्याख्या पूरे गुरु ग्रंथ साहब में। और भाई गुरदास की जो वारें हैं, इनको गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी की कुंजी, द की ऑफ गुरु ग्रंथ साहब का दर्जा दिया है। जिन्होंने ये लाइन लिखी थी, सुनी पुकार दतार प्रभ, ये उनकी वार है। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। तो धुंध कौन सी थी? धुंध ये बाहरी धुंध नहीं है जो सर्दियों में हमें दिखाई देती है। धुंध हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा था, वो छट गई जब गुरु नानक का प्रकाश हुआ। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी कविता से अपनी हाजिरी लगाऊंगा, फिर मुझे कृपया ये जरूर बता दें, क्योंकि मैं समय सीमा को सबसे मानता हूँ भी अपने दायरे में रह के हम बात करें समय की सीमा में। जो मुझे 3, 4, 5 मिनट मिलेंगे, कितना समय मुझे वीरेंद्र जी जरूर आदेश करें। हर पासे हाहाकार सी, डर रही लुकाई, सुनी पुकार दातार ने रहमत वरसाई। 1469 विच एक जोत इलाही, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ। जिस खुद ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ये लाइन आज के जो सो कॉल्ड रिलीजियस, उनके बड़े बड़े डेरे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो डेरे में ही रहते हैं, संगत आती है, वो अपना रखा लाल की कमाई उनको अर्जित करके चली जाती है। पर गुरु नानक ने ये नहीं किया, उनका कोई डेरा नहीं। 4 उदासियां उनकी जो 4 हैं, वो डोर टू डोर गए। ये पहली बार था कि कुआं प्यासों के पास गया, ना कि प्यासे कुएं के पास है। यही तो कमाल है गुरु नानक का। कुआं प्यासों के पास गया, मैं आपकी प्यास बुझाता हूँ। जिस खुद ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧਿਆਰ ਮਿਟਾਇਆ। ਹੈ ਤਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਉਹ ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਆ, तू ज्योति जोत समान तक उपकार कमाया। ज्योति जोत समाने तक उन्होंने उपकार ही किया है। कितना कितना धन अर्जित कर लिया गुरु नानक ने। मेहरबानी जी। और मर्दाना बाबे नाल सी। इनायत साहब अपना माइक बंद करेंगे प्लीज। इनायत साहब ये माइक को जरा दीजिएगा। इनायत साहब शुक्रिया आपका, शुक्रिया सर। अर्ज कर रहा हूं जी। मर्दाना बाबे नाल सी, बचपन का हानी, एक साज बजाया दूजे ने सी उचरी बाणी। ये पैनलिस्ट ये ध्यान दें, मर्दाना 12 साल की उम्र से गुरु नानक के साथ है, और मर्दाना बिलोंग करता है मुस्लिम धर्म से। तो ये जो सद्भावना का जो पहला पाठ है, गुरु नानक साहब हमें अचेत रूप में ही हमें दे रहे हैं। मानस की जात सब है, एक पहचान दो, हम सभी एक हैं। इसमें कास्टिज्म, कास्ट और धर्म कोई मायने नहीं रखते। सबसे बड़ा धर्म जिसको गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे बड़ा धर्म यही है, जिसको आप मानते हो उसकी बंदगी करो और वो कर्म करो जिसमें मैल ना हो, ये धर्म है। मर्दाना बाबे नाल सी बचपन दा हानी, एक साज बजाया दूजे ने सी उचरी बाणी। कर रहे कोशिश सदियां तो लखां प्राणी, पर गुरु नानक दी रमज किसे विरले ही जानी। और नहीं तेरे वर्गा देखिया कोई राह दसेरा, ना बनू जाबर आखना बस तेरा जेरा। ये इतिहास गवाह है। 1526 में बाबर आया था
हिंदुस्तान में, उसने जो जुल्म किए, तो गुरु नानक ने कहा तेरा नाम बाबर नहीं, तेरा नाम जाबर होना चाहिए, तू जबर कर रहा है, तू जुल्म कर रहा है। जो बाबानियां कहानियां नाम की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, तो उन्होंने ये शिकवा किया था, जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना होई, कि आप तो ताकतवर मजलूम को मार रहा है। तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, हम दायरे में रहें। बाबर ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਆਖਣਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਘੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਨਣ उगया, उगया मीन्स पैदा हुआ, वहीं रोशनी पैदा हो गई। कहाँ पे? ਉੱਥੇ ही चानण उगया जिथे पाया फेरा, जिथे पाया, जहां जहां गुरु के चरण पड़े वहां वहां रोशनी हुई। कौन सी? हमारे दिल के अंदर जो अंधकार था, हमारे मन के अंदर जो अंधकार था, वो रोशन हो गया। और अब हम जो गुरु नानक के सिख हैं, जो गुरु नानक ने कहा, और हम क्या कर रहे हैं, ये कुछ पंक्तियां अपने आप को शीशा दिखाने के लिए, क्योंकि मकसद भी गुरु नानक का मनाने का तभी है जब हम उनके अनुसारी हो जाएं। गुरु को गुरु ना माने, गुरु की भी माने। अफसोस इस बात का भी, हम गुरु नानक को गुरु तो मानते हैं, पर गुरु कह कर रहे हैं वो नहीं मान रहे हम। जिथे निंदा चुगली कन रस साडा उस थां फेरा, सानू जेड़ी थां तो फायदा बस उथे फेरा, असी उत्तों उत्तों आखदे सब तेरा तेरा, है इस गल दा हंकार भी सब कुछ है मेरा। बड़े हम बड़ा कुछ करते हैं भी, गुरु नानक ने तेरा तेरा कहा, हम जब हमारी बारी आती है तो हम मेरा मेरा करने लग जाते हैं। असी उत्तों उत्तों आखदे सब कुछ है तेरा, है इस गल दा हंकार भी सब कुछ है मेरा, असी पाप करन तो जुल्म करन तो कदी ना डरदे, डाढे अगे झुकदे नीवे ते वरदे। ताकतवर के आगे झुक जाते हैं, अपने से नीवे से हम शेर बन जाते हैं। असी डाढे अगे झुकदे नीवे ते वरदे, और तू जो जो सानू वरजिया असी वही कर दे। हे बाबा नानक, जिस जिस बात को तुमने रोका हम वही कर रहे हैं। तू जो जो सानू वरजिया असी वही कर दे, असी लालो नू दुरकार मलक दा पानी भर दे। ये साखी सभी ने सुनी होगी, भाई लालो और मलक भागो वाली। गुरु नानक साहब भाई लालो के घर ठहरे थे, गरीब तरखान के घर, हम उसको तो दुरकार रहे हैं और मलक पागो की हम चापलूसी कर रहे हैं। तो ये जो पंक्तियां मैंने आज के संदर्भ में आपको सुनाई हैं, ये एक किस्म का सेल्फ एनालिसिस करने के लिए भी है। हम मना रहे हैं, पैगंबरों का जन्मदिन मनाते हैं, पर मनाया तभी सार्थक है, जैसे फिलॉसफी की उनकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ फिलॉसफी डिस्कस करने के लिए इकट्ठा नहीं होते। ये जो हम सिर जोड़ के बैठे हैं, ये विचारों का आदान प्रदान जो हो रहा है, इसमें हमने उसका आत्मसात कैसे करना है, उसको ढालना कैसे है। जैसे गुरु नानक का लंगर की हम बड़ी तारीफ करते हैं, भी गुरु नानक साहब ने 20 रुपए का लंगर उस वक्त चलाया था। तो लंगर की प्रथा अब इस कोरोना काल में गुरुद्वारों से निकल के जब सड़कों पे आई, लंगर जब नीडफुल को मिला, उस लंगर में इजाफा भी हुआ, चाहे वो ऑक्सीजन लंगर भी आ गया इसमें, और संस्थाएं आंखों के लेंस का लंगर लगा रही हैं, ऑक्सीजन का लंगर लग रहा है, तो है वो बरकत ही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस बात का अहंकार करें कि हम लंगर लगाते हैं, हमारा लंगर नहीं है, ये तो गुरु नानक की बरकत है जो लंगर चल रहा है। अगर हम इसमें मोनोपली में हम इसमें प्राउड करने लगेंगे ना, हमारी कम्युनिटी लंगर लगा रही है, तो कहीं ना कहीं हम बाबा नानक जी का जो हृदय है उसको खुश नहीं कर। ये तो उसकी रहमत के हाथ से निकले हुए उनकी वाइब्रेशन तरंगे हैं जिसका लंगर चल रहा है। तो गुरु नानक साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जाए, जैसे गुरबाणी में भी है, जेबा एक कवन गुण कहिए बेशुमार अगनत स्वामी तेरो अंत ना किन्हू लइए। हम तो तेरी महिमा गा ही नहीं सकते। गुरु नानक साहब की अगर महिमा गाने लग जाए और गुरु नानक साहब के बारे में जिक्र करने लग जाए, तो ये तो समय सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। जैसे गुरु नानक साहब की वाणी में ये जिक्र है, एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए,
किसी के बारे में कहने के लिए उस जितनी हाइट चाहिए, तब उसकी बात को हम न्यायपूर्वक कह सकते हैं भी हाँ ये उसके बारे में मैं कुछ कह सकूं। तो हम उसके लेवल पे कहाँ हो जाएंगे जो हम दुनियावी लोग हैं। तो हम तो उसके बारे में जो कहेंगे बस एक समुद्र में से तिनका होगा सिर्फ। और गुरु नानक पातशाह का जो पैगाम है, जो मैं सबसे पहले आपसे बात करनी चाहता था, जो उन्होंने ये सिद्धांत दिया ना, नाम जपो, किरत करो। कीर्त करो और वंड छको। इसका इसका सीक्वेंस ये कमाल का था। गुरु नानक साहब ने पहले कीर्त करो रखा है, कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको। हमें मेहनत करने के लिए कहा गुरु नानक ने। हम मेहनत करेंगे तो हम फिजिकली और मेंटली इसलिए भी हमें सेटिस्फेक्शन होगी कि हमारे पास पैसा है। दूसरा इसके साथ तीसरा तब जुड़ेगा, फिजिकली हम फिट रहेंगे कीर्त करने से। जो काम करता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है और उसके पास पैसा होता है। अगर काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसा कहाँ आएगा। और तीसरा जो कंसेप्ट है मेरे पास भी पैसा नहीं है तो मैं बांट के कैसे खाऊंगा। तो जो रियल सोशलिज्म की बात गुरु नानक ने की है, तो गुरु नानक साहब की जो महिमा है उसका तो व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता। आज मेरा कोई सेहत भी ठीक नहीं थी, मैं जी से बात कर रहा था, पर वीरेंद्र जी का हुक्म था और मैं अभी भी थोड़ा सा असहज महसूस कर लूँ सेहत से। पर क्योंकि एक ऐसे पैगंबर की बात थी जिसमें मेरा बहुत जरूरी था मिलवाना, मैं आप सभी पैनलिस्ट को जो प्रबंधक है उनको बधाई देता हूँ आज के पावन अवसर पर। और हम गुरु नानक साहब के बारे में और जितनी बातें सुने हमारे ज्ञान में इजाफा हो। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर गुरचरण सिंह जी, गुरु नानक देव जी की जो उनकी अमृतवाणी है उस पर प्रकाश डालने के लिए। आपने जो उल्लेख किया कि उनके जो प्रमुख शिक्षाओं में जो है नाम जपो, किरत करो और वंद छको, ये बहुत ही ये यूनिवर्सल जो है ये उपदेश हैं। और अगर इस तरीके की जो हम दिशा में हम चल पड़ेंगे तो ये पूरा संसार जो है ये एक सुखमय एक वातावरण यहाँ पर आ जाएगा और जो है यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोएगा और शांति का वातावरण रहेगा। धन्यवाद पुनः आपके प्रवचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा जो है श्री गुरदीप सिंह जी से कि वो जो है गुरु की अमृतवाणी पर प्रकाश डालें। श्री गुरदीप सिंह जी। गुरदीप सिंह जी। हाँ जी। गुरदीप सिंह जी जो है वो सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट और इनका जो है ये बहुत जो है सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। किसी भी जो है समाज में जो है सेवा का उन्होंने जो है एक जो बेड़ा उठाया है, जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, उनके लिए भी ये कार्य करते हैं और ये एक मिसाल है जो है सबके लिए। मैं गुरदीप सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वो गुरु की जो उनकी अमृतवाणी है, गुरु की अमृतवाणी है, गुरु महाराज की अमृतवाणी है, उस पर पुनः प्रकाश डालें। धन्यवाद गुरदीप सिंह जी। हाँ जी, धन्यवाद वीरेंद्र सर जी। तो सबसे पहला मेरा सत श्री अकाल, सबको आदाब और नमस्कार। आज का जो ये पावन पूरब है, प्रकाश पूरब गुरु नानक महाराज का, संसार में जब गुरु नानक साहब आए उस समय का क्या हाल था, क्या वर्णन था, वो जो भाई गुरदास जी की वार है मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा, ठीक है। तो बाद में इंग्लिश में उसके जो वर्ड्स हैं, जो वर्सेस हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी करने की कोशिश करूंगा। तो खैर मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। तो सबसे पहले मैं जो आरंभ है ये मूल मंत्र से करूंगा। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। अब उस समय का व्याख्यान होता है जब गुरु नानक पातशाह इस संसार में आते हैं। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया।
सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण तोए रह रास कर, चरणामृत सिखां पिलाया। चरण तोए रह रास कर, चरणामृत सिखां पिलाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म काल जुग, अंदर एक दिखाया। चारे पैर धर्म दे चार वरन, एक वरन कराया। राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। उल्टा खेल पिरमदा पैरां उफर सीस निवाया। उल्टा खेल पिरमदा पैरां उफर सीस निवाया। कल जुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल जुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। The benefactor Lord listened to the cries of humanity and sent Guru Nanak to this world. चरण तोए रहरास कर, चरणामृत सिखां पिलाया। He washed his feet, praised God, and got his disciples drink the ambrosia of his feet. पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म काल जुग अंदर एक दिखाया। He preached in this dark age, that is Kali Yuga, that Sargun, that's the Brahm, and Nirgun, Par Brahm, are the same. चारे पैर धर्म दे चार वरन एक वरन कराया। Dharma was now established on its 4 feet, and all the 4 castes through fraternal feeling were converted into one caste of humanity. Rana rank barabari पैरी पवना जग वर्ताया। Equating the poor with the prince, he spread the equality of humbly touching the feet. Ulta khel piramda पैरा ऊपर शीश निवाया. In verse is the game of the beloved. He got the egotists high bowed to feet. कल युग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया. Baba Nanak rescued this dark age, that is Kali Yuga, and recited Satnam mantra for one and all. Kal Taran Guru Nanak Aya. Guru Nanak came to redeem the Kali Yuga. तो इसके साथ मैं अपना जो पार्टिसिपेशन है वो कंक्लूड करता हूँ. वंस अगेन बोलते पढ़ते सुनाते कोई भूल चूक हुई तो माफ करना. थैंक यू. धन्यवाद गुरदीप सिंह जी, जो आपने ब्यूटीफुल एक सुंदर प्रस्तुति जो रखी गुरु महाराज के शब्दों की. मैं निवेदन करता हूं नवतेज सिंह जी को. नवतेज सिंह जी, श्री नवतेज सिंह जी. जी हाँ, बोलिए. श्रीकाल जी, नवतेज सिंह जी, सत श्रीकाल. श्री नवतेज सिंह जी जो हैं वो सिख मिशनरी स्कूल में लेक्चरर रहे हैं और जो हैं गुरुद्वारा प्रबंधक में सेक्रेटरी हैं श्रीनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में. मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि वो आज के इस पावन पर्व पर जो है वो अपना संदेश दे सबको. श्री नवतेज सिंह जी. जितने भी आप इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. प्योर बिलोंग्स टू गॉड.
खालसा मीन्स प्योर, प्योर बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बी टू गॉड। तो गुरु नानक देव जी का जो फलसफा था वो था कि किस तरह एक इंसान को, हाउ ए ह्यूमन बीइंग कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड कैन बी लैडन विद हाई मॉरल वैल्यूज, जिसको कहते हैं उच्च आदर्शिक इंसान। एक इंसान को हम एक इखलाकी, ऊंची इखलाकी कदरों कीमतों के साथ किस तरह लेस कर सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब में भी ये बात स्पष्ट कर दी थी। जब हम उनकी 34वीं पौड़ी पढ़ते हैं जिसमें वो क्लियरली इस बात का वर्णन करते हैं, राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। He has clearly propagated the principles that you have come here with a pure and pious motto कि आप इन एडहेरेंस, धर्म का जो ये खेतर है, धरती जो है, ये धर्म कमाने के लिए आपको इस धरती पे भेजा गया है, जिसमें पहले उस अकाल पुरख ने पानी, हवा, जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स, ही हैज क्रिएटेड दैट। एंड आफ्टर दैट क्रिएशन इस धरती पे आपने धर्मसाल, 30वीं थाप रखी धर्मसाल कि आप धर्म को कमा सको। नो वी हैव प्रोपोगेटेड धर्म इन द रॉन्ग सेंस। धर्म है क्या? तो गुरु नानक देव जी क्लियर करते हैं, एको धर्म एको धर्म दृढ़ सच कोई, गुरमत पूरा जुग जुग सोई। धर्म जो है ये सच है और ये अटल है और सदीवी है, सदा रहने वाला है, ये खत्म नहीं हो सकता है, ये सदा रहने वाला है। अब उस धर्म को कमाते हुए उस सच को, सच्चों उरे सब को ऊपर सच आचार, यह भी गुरु नानक देव जी की बानी है कि सच तो है, ट्रूथ इज देयर, बट लिविंग ट्रूथफुली इज हायर देन द ट्रूथ। देखो कितना एक अमेजिंग चीज गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। ट्रूथ इज देयर, नो डाउट, देयर मस्ट बी ट्रूथ, बट लिविंग ट्रूथफुली इज हायर देन दैट। ये है गुरु नानक देव जी का उपदेश। एंड दैट कैन क्रिएट ए पर्सनैलिटी लैडन विद गुड क्वालिटीज। गुणा कहोवे वासला विच वास करीजे, क्योंकि हमने उन क्वालिटीज को ढूंढना है, उनकी परख करनी है। तो परख कैसे होगी? जैसे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, यहां धर्मी है, धर्मों का चोला पहना हुआ है, भाई मैं धर्मी हूं, मैंने चोगा पहन लिया, सफेद कपड़े पहन लिए। नो, गुरु नानक देव जी हैज टोटली कंडेम्ड दैट। क्योंकि काजी होके बहने आए, फेरे तस्बीह करे खुदाए, वड्डी लेके हक गवाए, जे को पूछे तो पढ़ सुनाए। फिर वही ड्रामा है कि हम जब कहीं इस जगह, जो कल्चर हमारा बना हुआ है, हम इसमें बाहर जो हमारा है उसमें हम धर्मी लगते हैं, लेकिन धर्मी बनना है हमने अंदर से धर्मी बनना है। तो उसलिए गुरु नानक देव जी ने यह फलसफा दिया कि आप सच की कदरों कीमतों को परखो और सच पे पहरा दो, और तभी जाके, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। अब गुरु नानक देव जी की गुरबानी जो कहती है उसमें हर मजहब के लिए, किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारा धर्म कबूल कर लो, नहीं, उन्होंने कहा अपने धर्म पर पक्के रहो। जैसे मुसलमान मोम दिल हो गई, अंतर की मल दिल तो हुए, जो मुसलमान है वो बड़ा मोम दिल है, और जो अंदर की उसकी मैल है वो धो दे, उससे अच्छा मुसलमान कोई नहीं है। अब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे। भाई ब्राह्मण ने ब्रह्म को पहचानना है। हु इज ब्रह्म? ब्रह्म इज ऑलमाइटी गॉड, जिसका विवरण गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र में दिया है, एक ओंकार, वो एक है, और उसका जो नाम है दैट एग्जिस्ट्स फॉर एवर, उसकी जो होंद है, एग्जिस्टेंस है,
दैट इज फॉर एवर। नानक सच खुदा एक, खुदाए बंदा अविनाशी। क्योंकि एक तो अविनाशी कौन हुआ? जो सदा रहने वाला है। एक तो जो उसका बंदा बन जाए अकाल पुरुष का, वो अमर हो जाता है। दूसरा अकाल पुरुष खुद, तो वो सदा रहने वाले हैं। तो जो सदा रहने वाला है ब्रह्म, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पछाने, आप तरे सुगले कुलतारे। पहले तो उसको ब्रह्म की पहचान करनी है। ब्रह्म मीन्स गॉड। और फिर उसको इस जो सागर है इस दुनिया का, उसमें से उसको पार सक्सेसफुली ही शुड सेल फ्रॉम दैट ओशन। और उस ओशन में से जिसमें और पंच हम एक जना क्यों राखे कर बार मन। और पंच कौन है? हमारा काम, हमारा क्रोध, ये गुरु नानक देव जी की बानी है। हमारा अहंकार, हमारे दूसरे विषय विकार जो है, और पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मन। तो हम एक अरदास कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं उस अकाल पुरुष के सामने कि मैं बचूं कैसे इससे, हाउ आई कैन सेव माई सेल्फ फ्रॉम दिस। क्योंकि जो भी आज बीमारियां लगी हुई है, लास्ट करप्शन, जिसको गुरु नानक देव जी ने जड़ से खत्म करने के लिए उसके लिए प्रोपोगेशन की थी। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत। हम धोते हैं अपने कपड़ों को, बड़ा साफ करते हैं, भाई मुझे पूजा करनी है, पाठ करना है, मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मस्जिद में जाना है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। अरे जो लोगों का खून चूस रहे हैं, राजेशी मुकदम कुत्ते, मुकदम कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली में है, वर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन राइट फ्रॉम टॉप ऑफिशियल्स टू लोअर लेवल, या जो शॉपकीपर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इफ दे आर डूइंग करप्ट प्रैक्टिसेस, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। उनका तो जो किरदार है वो कभी भी निर्मल नहीं हो सकता है। दैट कैन नॉट बी प्योर एंड प्योर वाज टू मेक ए मैन प्योर वाज द मोटो ऑफ गुरु नानक देव जी। और पंच हम एक जना क्यों राखों कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करे पुकार जना। मैं किसके आगे पुकार करूं? ये तो मुझे दिनों दिन मार रहे हैं। मैं उसमें आके अहंकार में आके लोगों पे जुल्म कर रहा हूं, लोभ में आके करप्शन कर रहा हूं। तो अरदास करते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं क्यों राखों कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। मैं किसके आगे पुकार करूं? तो इसीलिए गुरु नानक देव जी का जो फलसफा था, गुरु नानक देव जी ने एक मिशन ले लिया। बाबा देखे त्यान तार जलती सा पृथ्वी दिस आई, बाज गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई, बाबे पेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई। वो तो लुकाई को समझाने के लिए निकल गया, उसने मिशन टाल लिया कि मैं ऐसे ढांचे को जिसमें मानवता को बांट दिया है जातों में, बरादरियों में, खित्तों में, मैं ऐसे समाज को नकारता। जहां रिश्वतखोरी है, जहां राजा जुल्म कर रहा है, मैं ऐसे समाज को, उन ऐसे समाज के खिलाफ आई विल स्पीक लाउडली एंड विद कुरेज। मैं डरूंगा नहीं, मैं बोलूंगा। और गुरु नानक देव जी बोले। ही वॉज द ओनली स्पीकर एट द टाइम ऑफ लोधी एंड मुगल्स हु स्पोक बोल्डली in front of those strong leaders and opposed their oppression and propagated the philosophy of equality and justice to everybody irrespective of caste, color, creed and religion। और उसका एक जो उदाहरण है मैं गुरु नानक देव जी की वाणी में से आपको देना चाहता हूं। जब लोधी ने यहां पे हमला हुआ बाबर का, तो बड़ा जुल्म हुआ औरतों पे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा जिन सिर सोहन पट्टियां मांगे पाए संदूर, सो सिर काती मुनियन गल विच आवे तूड़, महला अंदर बहंदियां हुण बहन न मिलन हदूर। ये कहा कि जिन, क्योंकि उस वक्त लोग जो थे, जब लोग अपने कल्चर को भूल जाते हैं, अपनी उस आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, अपनी देशभक्ति को भूल जाते हैं, दे आर बोर्न टू बी स्लेव्स। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो वो फैशन था उस वक्त, औरतें बड़ी वो पट्टियां बनाती थी, तो जब हमले हुए तो पट्टियों को कैंची से काट दिया। जिन सिर सोहन पट्टियां, वो पट्टियां बड़ी अच्छी लगती थी, ब्यूटीफुल लगती थी, मगर सो सिर काती मुनियन, काती कहते हैं कांची को, कैंची को, सीजर को, उनको काट दिया गया। सो सिर काती मुनियन गल विच आवे तूड़, महला अंदर बहंदियां महल न मिलन हदूर। आप तो वो महलों में भी नहीं बैठ सकती। सो गुरु नानक देव जी ने कहा उठो, गैरत पैदा करो अपने अंदर, और गैरत पैदा करके ये जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, रिश्वतखोरी की, कादी
झूठ बोल मल खाए, इतना बुरा हाल हो गया भाई, रिलीजियस लीडर ही झूठ बोल रहे हैं। ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न आने जाने अंध, तीने अजाड़े का है बंद। हर क्षेत्र में, हर शोबे में, चाहे वो धर्म का था, सोशल जस्टिस का था, या इकोनॉमिक इक्वलिटी का था, उसमें भी यही बर्बरता थी। तो पॉलिटिकल सिस्टम तो बिल्कुल डिबैकल था, उसमें कोई जस्टिस नहीं था, ऑपरेशन था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, इसको खत्म करना है। एंड ही, जो उसने मिशन आगे प्रोपोगेट किया, दैट वाज नॉट टू फाइट विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन, दैट वाज टू फाइट विद द फिलॉसफी, एंड ही फॉट। और इसकी जो गवाही है वो भाई वीर सिंह जी देते हैं नानक चमत्कार, कि गुरु नानक देव जी ने कोई जंग नहीं की, लेकिन जीते वो प्राप्त की, फतेह वो प्राप्त की, विक्ट्रीज वो प्राप्त करी। ही वाज सो विक्टोरियस इन मेनी फील्ड्स कि जो सच के झंडे थे वो झूलने लगे, और जो निशान थे वो अमर हो गए। ये गुरु नानक देव जी का एक और मकालफ को भी इसको सेकंड करता है कि जो गलतियां भारतवासी जो थे वो सदियों से करते आ रहे थे, गुरु नानक देव जी ने उन गलतियों से उन भारतवासियों को बचा लिया। दिस वाज द पर्सनालिटी ऑफ गुरु नानक देव जी, एंड वी नीड टू रिसर्च ऑन दिस। और इस तरह रिसर्च करें, नहीं ये क्या, नहीं, जो उसके फैक्ट्स हैं उनको सामने लाएं। इनइक्वलिटी जो है भाई, मत चूसो गरीब का खून, गरीब के इस खून पर अपनी इमारतें मत बनाओ। काल खाए की छतों दे नानक राह पछाने, जो कमाओ और किसी को दो। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जिसमें इकोनॉमिक इक्वलिटी हो। किसी गरीब की मेहनत पर, पसीने पर अपनी इमारतें मत खड़ी करो। दैट इज ए बिग ब्लंडर, और ये बहुत बड़ा पाप है। ये है गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी। और गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी जो है वो इन भ्रमों से, जो भ्रम आजकल फैल चुके हैं। देखिए आजकल, मैं आपको लास्ट में कंक्लूड करूंगा, हमारा एक बड़ा ये है भाई, हम एडवांस हो चुके हैं, हर कोई कहता है। तो गुरु नानक देव जी ने उस एडवांसता को, जैसे आज लचन पर है, आप देखिए कहीं भी कितने दौर चलते हैं, डेरे हैं जिसमें रेप्स होते हैं, जिसमें बहुत कुछ होता है तो धर्म के नाम पे सब चल रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने जब पहली उदासी की, तो वापसी पे जब वो आ रहे थे, पहले श्रीलंका गए, वहां शिवनाव राजा था, उससे मिले, फिर मुंबई आए, मुंबई से राजस्थान आए, राजस्थान से वो जब मथुरा पहुंचे, तो वहां जो कुछ दरबी लोग उनको मिले, तो उन्होंने कहा भैया आप धर्म को राइट पर्सपेक्टिव में प्रचारो, एको धर्म धीरे सच कोई, सच को प्रचारो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है धर्म, धर्म को राइट पर्सपेक्टिव में, इसके प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट करना है, टू डेवलप ए पर्सनैलिटी, वेल जो लैडन विद क्वालिटीज हो, उस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए धर्म है। तो गुरु नानक देव जी ने उनको कहा भाई आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी जमाना बदल गया है, वी आर एडवांस नाउ, द टाइम हैज चेंज। तो गुरु नानक देव जी ने बाणी रची वहां, सोई चांद चढ़े से तारे, दिन यार कैसे तप्त रहे। अरे भैया वही सूरज चढ़ रहा है, वही चंद्रमा चढ़ रहा है, क्या बोल रहे हो? दिन यार कैसे तप्त रहे, सात धरती सब पौन जला रहे, वही तो धरती है। जुग जीव खेले थाम कैसे, जीवन तलब निवार। अरे अपने जीवन को उसकी तलब में रख, अकाल पुरख की तलब में रख, जो एक है, एक ओंकार है, और उसकी क्वालिटीज को, क्योंकि देखो रब के बहुत सारे नाम हैं। अगर वो दयालु है तो हम कहते हैं जी दयालु है, अगर वो रहीम है तो हम कहते हैं रहीम है, अगर वो गरीब को पालता है तो हम कहते हैं गरीब निवाज है। बहुत सारे नेम हैं, हम कहते हैं ना भाई इतने नाम है गुरु के। उसने कहा कि उसको जो है उसकी शरण में रह के वैसा ही बन। अगर वो दयालु है तू भी दयालु बन, अगर वो गरीबिल खराज है तू भी वैसा बन, अगर वो गरीबिल निवाज है तू भी वैसा बन। ये है गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी फिलॉसफी है गुरु नानक देव जी को, वी नीड टू रिसर्च ऑन दैट एंड दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। उसको रूपमान करना पड़ेगा हमें इन लेटर एंड स्पिरिट, एंड देन हम ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जिसमें इखलाकी कदरों कीमतों से लेस लोग जो हैं वो हमारे सामने आएंगे, और हमारा देश जो है एक मजबूत देश बन के सामने उभर के आ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद श्री नवतेज सिंह जी। जो है गुरु महाराज की जो वाणी है वो पूरी, उसमें जो है सृष्टि ही नहीं पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपने जो है गुरु महाराज की जो अमृत वाणी है उसकी जो प्रासंगिकता है उस पर आपने प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ जो है श्री संदीप सिंह जी से, श्री संदीप सिंह जी, श्री संदीप सिंह जी।
संदीप जी सिंह जी यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो जो है वो हमारे अगले वक्ता हैं, डॉक्टर श्री संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी। वीरेंद्र जी, आई सी कि देर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम विद संदीप जी। संदीप हाँ जी जी, का हाँ जी, हाँ जी। ही इज कमिंग एंड गोइंग, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जी जी आई जी, गेस आप सही कह रहे वी हैं। कैन कीप हिम मु- फॉर द नेक्स्ट मुझे राउंड। लगता है इनायत साहब को, इनायत साहब हैं सर, इनायत साहब। हाँ जी, हाँ जी। इनायत साहब, इनायत साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? इनायत साहब, इनायत साहब, बंद करें, हम लेफ्ट करके नहीं ठहर इनायत साहब, इनायत साहब अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। इनायत साहब, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। माइक और वीडियो दोनों। वीडियो तो ऑन है, हेलो, माइक ऑन करना है। आ गया? हाँ इनायत साहब, हाँ हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। इनायत साहब जो हैं, इनायत साहब जो हैं, ये जो हैं कवि हैं और राइटर हैं, ऑथर हैं। इनकी बहुत सारी किताबें शाया हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, और ये चीफ एडिटर हैं इस तरह मैगजीन के, इस तरह मैगजीन के, और जनरल सेक्रेटरी हैं कश्मीर मरकजी अदब व सकाफत के। इनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उसमें बुक श्रेष्ठ में क्या नाम, और इनका एक मोनोग्राफ इनका प्रकाशित है, वो है अली मोहम्मद शाद साहब के ऊपर है। और उन्होंने कई किताबों के लिए फॉरवर्ड भी लिखे हैं, वो जो जिसमें प्रोज पोएट्री उर्दू कश्मीरी दोनों में लिखते हैं ये। और 2019 में जो है इनको करतारपुर जाने का मौका मिला, और वहां पर डेरा बाबा नानक उत्सव में इन्होंने शमूलियत करी, और इन्होंने जो है वहां पर अपना एक रिसर्च पेपर ही पढ़ा, जिसमें गुरु नानक और नोंदरेश इनका जो संदेश है जो मानव मात्र के लिए, उस पर इन्होंने जो है अपनी प्रस्तुति वहां रखी। और मैं श्री इनायत गुल से दरखास्त करता हूं कि वो हमें मुखातिब करें। श्री इनायत गुल साहब। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर बंगलू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं जो ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड कल्चर, जो ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की तरफ से 552वां साल विशाल या प्रकाश दिवस, इस शुभ दिन पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जनाब नवतेज जी, गुरदीप जी और बाकी जितने भी ज्ञानी हैं और जिन्होंने इस मुबारक दिन पर जो रोशनी डाली है, मैं बहुत ही मुतासिर हूँ। मैं एक अदना सा इस महान हस्ती पर बात करूँ तो कैसे करूँ, लेकिन मैं ये हक समझता हूँ कि जिसने हक की बात की हो, जैसा कि एक फारसी एक शायर ने क्या खूब कहा है, जहाने 400 अंदर भरमन, हवाई ला मका अंदर सरमन, चिबिग सिस्टम अजी बामे बुलंदी, जो गरद उफ्ताद परवाज़े अज पुरे मन। और मिर्जा गालिब का एक शायर है, दहर जुज जलव यकताई माशूक नहीं, हम कहाँ होती अगर हुस्न न होता खुद भी। इसका मतलब यह है कि जो रब है, जो अल्लाह है, उसने क्या कहा है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, मुझे इस बात से मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने पैगंबरों को पैदा किया, ऐसे मखलूक पैदा किए जिनसे मैं पहचाना जाऊं। और बाबा गुरु नानक देव जी, जिसके बारे में तो बहुत मतलब तर्जुमे भी हुई है, उर्दू में, कश्मीरी में, हर जुबान में। और उनके जो श्लोक है, एक मैंने एक जगह पर पढ़ा है कि पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जा का नाव, नानक पूरा पाया पूरी की गुण गाओ। जिस ईश्वर का नाम मुकम्मल है, मैंने उसी की बंदगी की है। ए नानक, मुझे वो कामिल मिल गया है, अब मैं उसी की हमद और शुक्र करता हूँ। दरअसल कामिल रब का नाम है, अगर कामिल हो तो गुर की बात सुनो। उपदेश वो तुमसे कहता है, पाक है मेरा रब, परमेश्वर हरदम और हमेशा रहने वाला है।
वो बिल्कुल तुम्हारे मन में रहता है और तुम हरदम रब को याद करो, हक से अपने दिल को मसरूर करो, अपने मन की चिंता दूर करो और हमेशा दूर करते रहो। तुम संतों के कदमों की धूल को देखकर वो तुम्हारे लिए अक्सीर है। रब से मांगो अपना पिंडार दूर कर। तुम साधु की संगत में तैरो, आग का दरिया पार कर सकते हो। तुम रूहानी दौलत हासिल करो, अपने खजाने भरते जाओ। हजरत बाबा गुरु नानक देव साहब वाकई दुनिया के एक अजीम मर्तबत, एक दरवेश सिफत, एक फकीर और एक महान गुरु थे जिसने वहदत में कसरत के फूल खिलाए। लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अपने ही मन में डूबकर सुरागे जिंदगी का दीप जलाकर हक व सदाकत का, एक ही रब का तस्वुर और यगानियत में बंदगी का दर्ज दिया। और क्या, नवंबर 8 से लेकर 11 नवंबर 2019 डेरा बाबा नानक उत्सव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इसी मुबारक दिन के मौके पर मुझे भी दावतनामा मिला था। बरसों की तपस्या की थी मैंने, दिल की उमंग थी, आरज़ू थी, और शायद बाबा गुरु नानक ने वो पूरी कर ली कि मैं उस वक्त शामिल हुआ। और एक जगह का नाम है शायद कुलनूर, वहां पर ये लिखा था जिसने नहीं देखा है लाहौर, वो देखे कुलनूर। अवलीन वो पाक सरजमीन के उस आस्थाने में उस चादर शरीफ का दीदार भी नसीब हुआ जिस पर बाबा नानक देव जी के मुबारक हाथों से सुई के बारीक नोक से इस चादर पर कुरान शरीफ तहरीर किया है। मुरादी तो पूरी हुई और इस अजीम रूहानी बुजुर्ग की तपस्या जो अरब, ईरान, इराक और जिन्होंने अरब के अलावा दीगर ममालिकों का भी दौरा किया है, लेकिन क्या दिया? इंसानियत, यगानियत, इबादत, रवादारी, यही दर्ज दिया। भूखों को खिलाया, कोई खाली पेट न सोए, कोई भूखा न रहे, कोई बरहाना जिस्म न रहे, कोई खून न बहाए, कोई मकरूज न रहे और कोई बीमार न पड़े। वाकई एक अजीम दरवेश, एक अजीम रूहानी पेशवा तमाम तर जिंदगी फिक्र इंसानियत में गुजारती, फिक्र इंसानियत में गुजारती। बाबा गुरु नानक देव जी, बातें तो बहुत हम करते हैं, हम सबका सुनते हैं, लेकिन अमली तौर पर बाबा नानक जी ने करके दिखाया। बिल्कुल भूखों को खिलाया, इंसानियत के लिए रोया, राह चलते मुसाफिरों, श्रद्धालुओं, गरीबों, नादारों को रोज खाना खिलाता रहा। ये तो एक महान तपस्या है। पर अगर इस सृष्टि के लोग हम वक्त बाबा गुरु नानक देव जी के जो इकदाम थे, जिन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी दिया है, जिसने मुझे कहा है कि सच बोलो, जिसने मुझसे कहा कि तुम दूसरों को दुख न पहुंचाओ, जिसने हमें कहा कि खून नाहक न करो, हक को सदाकत रहो, एक अल्लाह से डरो, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। हम वक्त हम जंगो जदल में परेशान हैं। अगर हम बाबा गुरु नानक देव जी के दिए हुए वचन, उनके शुलूकों पर चले तो शायद दुनिया में न कहीं गुर्बत रहेगी और न कहीं भूखा रहेगा और न कोई भूखा सोएगा। जैसे कि उनका दिया हुआ जो लंगर खाने हैं, मैं जहां भी गया गुरुद्वारे में, और मैं वाकई यकीन से ये कहता हूं कि अगर ये चलन दुनिया भर में जारी रहा तो कौन भूखा सोएगा।
बाबा गुरु नानक वाकई एक अजीम मतलब मैसेंजर थे, पैगंबर थे। और जब ये दुनिया तबाही के आलम पर, या जब पूरा हमारा ये मुल्क तबाही के दहाने पर था, तो रब ने गुरु नानक देव जी को भेजा ताकि वो हमारी इस्लाह करे, हमारी मदद करे, हमारे काम आए। तस्बीह के दाने फिरने से और अपने माथे को सजदे में रगड़ने से इनफरादी सुकून तो मिल सकता है, मगर किसी भूखे को खिलाने से जो सुकून मिलता है, जो वो सरग भी नसीब होगा और दुनिया में कामयाबी हासिल होगी। और एक जगह पर जैसा कि मैंने कहा कि जो तर्जुमा हुआ है कि कलामी मुबारक का, फिर ले नव अकलीमों में, उम्रे भी लंबी पाए जा, एला तारक और तपस्वी बनकर जिंदगी, बनकर जोहद कमाए जा, जीते जी तो आग में जल जा, जान अपनी कुर्बान भी कर, सोना दे दे घोड़ा दे दे, भूमि धन का दान भी कर, घर तो मन का मेल न उतरे, मान गुमान न जाएगा। घर तुम कायनात का सैर कर लो, मुशाहिदा कर लो, तुम अगर उम्र दराज भी पाओगे, समंदरों में तैरते भी रहोगे, आसमानों में उड़ते भी रहोगे, तपस्या में दिन रात माहो रहो, तुम जाहिद बनकर भी क्या पाओगे, तुम जीते जी ही आग में जल जाओगे। तुम सोना दे दो, घोड़े दे दो, दान में सब कुछ दे दो, लेकिन अगर मन का मेल न उतरे, अगर आपका मन साफ ना हो, अगर आपने मन को मेल को खत्म न किया, तो सब कुछ रायगा नहीं। और यही कुरान में भी लिखा है, खलकल इंसान मिन सलसल कल फखार व खलकल जान मिन मार्जिन मिन नार। मैंने इंसान को इंसानियत के लिए पैदा किया है। और जैसा कि बाबा गुरु नानक देव जी, उनके माथे में जो नूर चमकता है, उनके मुबारक जो उनका ये नूरानी चेहरा जो है, जब भी इसकी तरफ मेरी निगाहें पड़ती हैं तो वाकई में नूरानी मेरा दिल हो जाता है। लेकिन बाबा गुरु नानक देव जो तमाम इस रोई जमीन पर, जो इस कायनात को जिसने बनाया है, और इस कायनात में एक नूर की किरण जो बाकी अब भी है, वो हमें वाकई उन लंगर खानों से मिलती है कि जब भी मैं जाती तौर कहूँगा, मैं जब भी पंजाब गया या कहीं गया तो गुरुद्वारे में वो गुरु नानक का दिया हुआ मैं प्रसाद समझता हूँ। वो मैं तबरूक लेकर, हम कहते हैं कश्मीर में तबरूक, क्योंकि जो एक शख्स मुझे मिला कि मैं 2 दिन से भूखा था, मुझे कहीं से कुछ न मिला, तो बाबा गुरु नानक के लंगर खाने से मैंने खाना खाया। ऐसे अजीम मर्तबत पैगंबर, ऐसे अजीम मर्तबत रूहानी पेशवे, ऐसे अजीम मर्तबत रूहानी बुजुर्ग, अगर हम सारी दुनिया का जायजा लेंगे तो इस दुनिया में चंद ही ऐसे पैगंबर, चंद ही ऐसे पेशवा हमें मिले हैं जिनमें एक सरकर्दा नाम और एक सरकर्दा हस्ती है बाबा गुरु नानक देव जी। और यही तो वजह है कि गुरु नानक देव जी का जो मिशन है, उनका जो पैगाम हक है, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा है कि नानक ने जिस जमीन को पैगाम हक सुनाया। और जब हक की बात करें तो हक में ये आता है कि आप किसी को दुख में पहुंचाओ। जब हक की बात हो तो अपने दिल में औरों के लिए मोहब्बत पैदा कर दो। जब हक की बात हो तो रवादारी समझो। जब हक की बात हो तो किसी को धोखा मत दो। जब हक की बात हो तो एक रब की इबादत करो। जब हक की बात हो
तो किसी को भूखे न देख। जब हक की बात हो तो ये जात पात सब कुछ एक तरफ छोड़ दो, तुम एक हो जाओ कि तुम इंसान हो। तुम्हारी भी आंखें हैं, तुम्हारी भी नाक है, कान है, सुनते भी हो और आप सूंघते भी हो। मेरे बाबा गुरु नानक देव जी, आज उनका जो ये प्रकाश दिवस है, और मेरी दुआ है कि वो हमारी मन कामनाएं पूरी करे, सुने, और उस धरती में, इस धरती पर जो तमाम कायनात है, जो ये कायनात मतलब पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा जो संसार है, इसमें एक ऐसा चिराग जलाए ताकि हमारे दिलों से नफरत दूर हो। बाकी तो मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, जहाँ इतने बड़े महान गुरचरण जी साहब हैं या गुरदीप साहब हैं, और ख़ास तौर पर डॉक्टर वीरेंद्र बंगरू साहब एक महान हस्ती है। उनका मुताला, उनका मुशाहिदा और उनके तजुर्बे में हम एक मामूली निकम्मे से हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया इनायत साहब, आपने जो है गुरु महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। गुरु महाराज की वाणी तो है ही है, साथ में उनका जीवन भी एक संदेश है। उन्होंने जो वाणी में कहा वो उन्होंने जीवन में जिया भी, और हमें तो गुरु महाराज के पथ पर चलकर अग्रसर होकर कि हम ये जो जीवन को हम जो है एक सुंदर बना सकते हैं, ये पूरा संसार को सुंदर बना सकते हैं। और जो है, और ये कोई कठिन नहीं है, मतलब लगता है कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की, लेकिन अच्छा इंसान, सच्चा इंसान बनना क्या इतना कठिन है कि हम इतने इतने वो गुरु आए, पैगंबर आए, तब भी हम अच्छे नहीं बन पाए? क्या कारण है इसके? इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये जो समागम है, ये जो फोरम्स हैं, इन पर हमें डिस्कस करें कि एक सरल जीवन जीना ये क्यों कठिन बनता जा रहा है हम सबके लिए, जिसमें जो है हम चारों तरफ हम देख रहे हैं अंधकार ही अंधकार छा जाता है, और फिर हम एक असहाय से हो जाते हैं। तो ये आवश्यक है कि जो गुरुओं की वाणी है उसको हम सार्थक करें, उस पर हम चलें, उसका जो संदेश है वो हम जनमानस तक पहुंचाएं। और ये जो कहीं ना कहीं ये जो संदेश है ये पाठ्यक्रम में आ जाए, ये हम बच्चों में वो ज्ञान दर्शन उनको ये मिले कि जो ये सरल सादा जिंदगी जो थी, गुरुओं की जिंदगी थी, वही हम अपनाएं, और इसी से ये जीवन जो है सुखमय हो सकता है। और यही एक संदेश है, गुरुओं का भी यही संदेश है। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा श्री संदीप सिंह जी को। श्री संदीप सिंह जी, अगर यहाँ पर हम हमारे साथ कनेक्ट कर पाए तो प्लीज। वह श्री संदीप सिंह जी। वीरेंद्र जी, संदीप सिंह जी नहीं कनेक्ट हो पाए हैं अभी। जी हमारे जी स्पीकर्स में परमजीत जी हैं, तो जी आप जी जी। उनको इनवाइट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी जी जी। परमजीत सिंह जी, परमजीत सिंह जी, परमजीत जी, आपका माइक ऑफ है। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल परम जी। जी जो है ये इनका भी बहुत ही जो है इनका जो एक अलग ही एक अध्ययन है, वो है अध्ययन है कि जो गुरु महाराज जहाँ जहाँ गए हैं उन जगहों को जानना, और वहां पर जो है वो वहां पर जो शिक्षा प्राप्त करना। तो ये इनकी भी एक अलग ही एक यात्रा रही है, जहाँ जहाँ हम जो गुरु महाराज के पदार्पण हुए उन गुरुद्वारों में जाना, और वहां पर जो है जो ज्ञान जो है वहां पर विस्तृत हुआ, उस ज्ञान का अध्ययन करना। और ये प्रकृति प्रेमी भी है। मैं निवेदन करूंगा परमजीत सिंह जी को कि वो अपने विचार रखें इस शुभ अवसर पर। श्री परमजीत सिंह जी। नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मुझे मांगू जी ने बोला बोले, पर मैं ना एक्चुअली में स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ एक श्रोता हूँ। सो मैं कुछ बोलूंगा, ट्राई करूंगा, तो गलती हो जाए तो माफ कर देना। तो हम बात कर रहे थे गुरु नानक देव जी के बारे में, जो उनका जन्म हुआ जो उस टाइम हुआ बिल्कुल अंधकार था, जैसे गुरुचरण जी ने बोला। तो सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक, जग माय पठाया, कल तारन गुरु नानक आया। उस टाइम जो धुंध थी, वो धुंध ये नहीं कि एक जो इनजस्टिस उसको थी, इनइक्वालिटी की, इवन विद इन सोशल सिस्टम भी इनइक्वालिटी चल रही थी। उसको मिटाने के लिए भगवान ने खुद गुरु नानक देव को हमारे यहाँ पे भेजा। तो उसमें उनके बाद जहाँ पे पैदा हुए उसको बोलते हैं, वो गांव का नाम था राय भोई की तलवंडी।
जिसको बाद में ननकाना साहब के नाम पे बना दिया गया था। उनका जन्म 1469 में हुआ अप्रैल के महीने में, पर हम मनाते कब तक में है ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। भी कहते हैं 15 अप्रैल का जन्मदिन है, बट मनाते कब तक में है, ये शायद भाई बालाजी की जो साखी है उन उसके हिसाब से मना रहे हैं। भाई बालाजी ने कहा था कि जन्म गुरु नानक देव का कत्तक में ही हुआ था, तो उसी हिसाब से शुरू से वही ट्रेडिशन चली आ रही है कि हम उनका जन्म कत्तक की पुण्यागी मनाते हैं। उस शुरू से वही चल रहा है इसमें। तो वही हमारे माइंड में इनग्रेन हो चुका भी, कत्तक की पुण्यागी गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तभी हम मनाते हैं। और उसके बाद गुरु जी की बड़ी यात्राएं हैं, जिसमें वो बहुत जगह घूमे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह गए। मुझे लगता है वो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेवलर हैं, मुझे लगता है, क्योंकि पैदल उस टाइम जाना, आज तो हम 1 किलोमीटर नहीं चलते, उस टाइम वो हजारों किलोमीटर पैदल चले, फ्रॉम ननकाना साहब टू श्रीलंका, इधर सिक्किम बर्मा साइड, इधर से इराक ईरान इराक, उधर से वो अपना मक्का, ऊपर से रशिया तक का भी इनका वर्णन, अभी इतना पूरा इन्होंने अपना चक्कर गया। उसके बाद सबसे लास्ट में अपना करतारपुर साहब आ गए। इसमें जो 2 मेन गुरुद्वारा है जो मेरे मन में है, एक तो करतारपुर साहब का है और एक है सुल्तानपुर लोधी का। चाहे सुल्तानपुर लोधी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में है, पर वहां पे लोग मतलब जाना तो चाहिए, जैसे इट इज ऑल्सो लाइक ननकाना साहब, क्योंकि यहाँ पे गुरु साहब 14 साल 9 महीने और 13 दिन रहे हैं यहाँ पे। और यहीं पे जब शादी के बाद यहाँ पे इनके 2 बच्चे हुए हैं, श्री चंद जी और लक्ष्मी चंद जी, और यहीं पे इन्होंने अपना जो जीवन व्यापन किया है, जिसमें इन्होंने एक सर्विस भी किया है, जो था यहाँ पे अपना उसका लोधी खानदान की जो उस टाइम चली आ रही थी। वैसे जो सुल्तानपुर लोधी जो शहर है ना, ये बहुत पुराना शहर है। 1st सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक इसका नाम था सरवनमनपुर। यहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहे हैं, बुद्धिस्ट पढ़े हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे ये कन्वर्ट होके उसमें आ गया था। तो उसके बाद यहाँ पे इवन जो शाहजहां है, उसके दोनों बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब ने भी यहाँ पे शिक्षा ली है। आप यू कैन इमेजिन, सुल्तानपुर लोधी को लोग जानते भी नहीं है। और मुझे यहाँ पे 7-8 गुरुद्वारे गुरु नानक देव जी के, जहाँ पे आके सभी को एक बार यात्रा जरूर करनी चाहिए सुल्तानपुर लोधी में, क्योंकि गुरु नानक देव जी यहीं पे 13 का वो किया, और यहीं पे एक ओंकार सतनाम का जो जपजी साहब की पहली तुक है, यहीं पे उन्होंने उनको आई थी, और उसके बाद यहीं से शुरू हुई। सो मैं तो यही बोलूंगा, जो हमारे पैनलिस्ट हैं जो भी हैं, एक बार अगली बार जब बीच में जब भी कभी भी आए, एक सुल्तानपुर लोधी का जरूर चक्कर लगा, मैं आपके साथ चलूंगा, और वहां पे हम पूरे दर्शन करके आएंगे। 1 या 2 दिन वहां पे रहेंगे। बहुत रमणीक जगह है, बिल्कुल दरिया के कंढे में है बना हुआ। तो एक बार प्लान करें, हम सभी आएंगे, वहीं पे जाएंगे। सो एज ए श्रोता मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, मैं आपको सभी में वेलकम करूंगा। और मैंने अभी गुरचरण जी जो भी बोला, आप आओ, हम घूमते हैं, क्योंकि वो भी नहीं आए सुल्तानपुर लोधी अभी तक। तो 1 मिनट, मुझे हमारा ननकाना साहब, क्योंकि वहां उधर जाने के लिए हमें वीजा लगता है, तो वो हमें मिलता नहीं है। तो एटलीस्ट जहाँ पे गुरु नानक देव 14-15 साल रहे हैं, वहां पे तो हम जरूर जा सकते हैं। और सेकेंडली हम कहूंगा, जो करतारपुर साहब का जो लांगा खुला, उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक वो मौका दिया है कि हम उस जगह जा सके जहाँ पे गुरु नानक देव ने अपने जीवन के आखिरी भी गुजारे हैं। और जो संदेश दिया उन्होंने, सबसे पहले कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण छको, वहां से उन्होंने दिया संदेश, और जो पूरी दुनिया में फैला है। तो होप मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली श्रोता ही रहा हूँ। तो मेरा सभी को सत श्री अकाल वंस अगेन, एंड कभी प्लान बने तो जरूर आओ, सुल्तानपुर लोधी हम सभी चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जी। और मैं एक और धन्यवाद बोलूंगा जी अपना वीरेंद्र बांगरू जी को, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं। इससे ये जो समाज में जो होता है ना, क्या बोलते हैं, एक जैसे हम बैठे हैं सभी मिलकर बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत आगे लंबा जाता है। मैं बैठा हूँ, मेरी फैमिली सुन रही है और सुन रहे हैं, तो उसके बाद भी वो सभी होता है। तो उससे मतलब ये इसको हम और फैलाएं, जिससे जो समाज में जो पीछे से 15-20-30 साल में जो मतलब डिफरेंस आ जाए ना, वो दोबारा से बंद होने चाहिए। क्योंकि जो गुरु नानक देव का संदेश है, उसमें तो हम सभी सेम है, बट धीरे धीरे करते करते कहाँ पहुंच गया वो। इसलिए मेरा कहता भी, आप और फैलाओ इसको, पूरे लेवल पे फैलाओ। धन्यवाद बांगड़ू साहब। धन्यवाद परमजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इम्प्रॉम्प्टू बोला हूँ, आप बताओ मैं ठीक बोला गलत बोला? नहीं, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही, और विशेषकर आपने सुल्तानपुर लोधी का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखी हम सबके सामने, तो वाकई में मुझे लगता है कि हर श्रद्धालु को और जो है स्कॉलर को वहां जाना चाहिए, और वो जो उसका जो
उसका जो भूगोल है और उसमें जो गुरुजी वहाँ रहे, उनका जो उनकी जो वहाँ कृतियां रही उसको अध्ययन करना चाहिए। जो उन्होंने जीवन साधा वहाँ पर, तो वो हमारे लिए भी एक उदाहरण है, हम सब के लिए, मानव मात्र के लिए उदाहरण है। और आप जो यात्राएं हैं, यात्राओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो गुरुजी की यात्राओं से जो एक ज्ञान दर्शन जो है, उसने एक बहुत बड़ी नींव रखी, मतलब एक बड़े पंथ की नींव रखी। तो ये यात्राओं से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और एक फर्स्ट हैंड अकाउंट जो हमें मिलता है वो यात्राओं से ही मिलता है। और एक बिल्कुल एक सही बात है। हाँ जी। एक किताबों में जो हम जो पढ़ते हैं उसमें भी हमारी कल्पना ही ज्यादा रहती है, लेकिन कल्पना का जो हम साकार कर सकते हैं वो यात्राओं के माध्यम से साकार कर सकते हैं। और गुरुजी ने जो है वो खुद करके दिखाया है। इतना जो उनका जो रहा, यात्राएं रही हैं, उनकी उदासियां रही हैं, और उन्हें जो है, और उन उदासियों से जो एक दर्शन सामने आया है वो है कि एक मानव मात्र का दर्शन, एक मानव जो है कि जो जो ये चारों तरफ जो ये हमारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे है। समस्याएं तो उन्होंने जो देखा होगा यात्राओं के माध्यम से, जैसे वो गए, उन्होंने पूरे जो है जो मानव मात्र में जो तकलीफें हैं, जो दुख हैं, जो उन्होंने देखा, उसको उन्होंने सहेजा, और उसका जो उन्होंने उत्तर वो जो है उन्होंने दिया उसमें। और वो उत्तर है उनकी जो उनकी प्रमुख जो शिक्षा है वो है, नाम जपो, किरत करो और वंश छको। और इन्हीं में मुझे लगता है कि इन्हीं में उत्तर है उनका। और इन्हीं में जो है मानव मात्र का उत्तर है कि हम सब मिलजुल कर रहे। और ये जो गुरु की जो वाणी है, जो है उनकी अमृत वाणी है, ये हम किसी धर्म के उसमें उसमें आईने से न देखें। हाँ, ये पूरा बिल्कुल सही बात पूरे है। मानव हाँ, मात्र के लिए ही है उनका जो संदेश है। बिल्कुल। पूरी सृष्टि के लिए, पूरे जगत के लिए श्रेष्ठ है। इसमें 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 जात पात धर्म, तो इसमें कोई ऐसा कोई है ही नहीं। सबके लिए एक सूत्र उन्होंने बांधा। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब जो स्पीकर्स आज रहे, माननीय स्पीकर्स हमारे यहाँ पर। आपने प्रकाश डाला गुरु नानक जी की जयंती पर, और जो प्रकाश पूरब जो हम सब मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, आपने उस पर प्रकाश डाला। और ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश जो है एक दिया और दिए को ये प्रकाशित करेगा, और पूरे ये जो ज्ञान प्रवाह है ये चलता रहना चाहिए। अब ये ऑनलाइन के माध्यम से, हम आगे ऑफलाइन के माध्यम से भी हम जुड़ते रहेंगे। मैं डॉक्टर सुमंता सारथी जी से निवेदन करता हूँ कि आगे की जो प्रस्तुति है वो रखें। वीरेंद्र जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दत्ता साहब ने जी, जी। जो है अपना हैंड रेस किया है, जी, जी, जी। जिस नवतेज दत्ता सिंह साहब जी। शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, जी। धन्यवाद वीरेंद्र जी। धन्यवाद। कि जिस दत्ता साहब का मेरे ख्याल से हैंड रेस आ रहा है, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दत्ता साहब, अगर इफ यू कैन हियर अस, कोई भी प्रतिक्रिया हो इस विषय पर और कुछ बोलना चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर श्रोता, प्लीज। anybody who is present and who has any questions or any discussion, तो we will welcome it, क्योंकि हमारे गुरचरण सिंह जी भी यहाँ जुड़े हैं, वो उत्तर दे सकते हैं सारे प्रश्नों का। वो the best thing is कि गुरचरण जी हमारे साथ हैं, तो he can answer any of the queries which we can take benefit of his presence today. मेरे ख्याल से दत्ता साहब नहीं सुन पा रहे हैं, और else he could have responded. Anyways, एक आजकल जो सबसे बड़ी चीज चल रही है वो ये है कि we lack simplicity in our approach, and this is the thing which I guess so is the supreme most thing for becoming a human being. मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी से नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 2009 से देयर इज ए स्टूडेंट्स इनिशिएटिव विच इज नेम्ड एज विकल्प। विकल्प जो है वो एक ऑल्टरनेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आसपास के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके बच्चों को, या जो यूनिवर्सिटी के आसपास गांव हैं, 2 गांव हैं अगर आप देखें तो, एक सिरा और दूसरा ककरेयाल, वहाँ के जो थोड़े से गरीब या ऐसा कहना चाहिए थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं और उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को जो है एजुकेट करने का काम करती है। और ये इनिशिएटिव जो है यूनिवर्सिटी के फैकल्टी नहीं, रादर देन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो करते हैं। तो आसपास से हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और
और हम उनको पढ़ाने लिखाने की कोशिश करते हैं। साथ में हम उनको कंप्यूटर के कोर्सेज़ भी करवा चुके हैं। हमने और भी उनके लिए बहुत सारी वॉलंटरी और वोकेशनल ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करने की कोशिश की है। एंड इट इज़ रनिंग सिंस 2009 एंड वी हैव कंप्लीटेड 12 इयर्स दिस ईयर। और अभी कुछ दिनों पहले हमारा उसका फंक्शन भी था और हमें जो है एलुमनाइज, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स और कभी-कभार आसपास के बहुत सारे लोगों से इंक्लूडिंग द पेरेंट्स ऑफ say the students as well as the people who are studying, वो भी जो है हमें हेल्प करते हैं एंड वी गो ऑन टू डिस्ट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी देते हैं, उनको पेंसिल्स, पेन और बहुत सारे कपड़े, राइटिंग मटेरियल से लेके बहुत सारी चीज़ों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये कोशिश जो है ये किसी एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे उसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन क्योंकि ये एक सामूहिक स्तर पे चलता है और बहुत सारे हमें हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं, इसके कारण से हम 12 इयर्स विदाउट एनी ब्रेक वे ओके ड्यूरिंग कोविड वी हैव टू स्टॉप इन बिटवीन, लेकिन उसको छोड़कर और हम अब उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लेके चले गए हैं। यूट्यूब में जो है हमने उनका एक चैनल भी खोला है, वहाँ पर भी जो है ऑनलाइन छोटे बच्चों की स्टडीज के लिए कुछ वीडियोस भी हमने अपलोड किए हैं और ये कोशिश जारी है। और मुझे लगता है कि नानक साहब के जो टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स हैं वो इसके बेस्ट एग्जांपल हैं दैट वी हैव टू बी सिंपल। और जैसे अभी मेरे ख्याल से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय आई गेस नवतेज जी जो इस चीज़ के बारे में बोल रहे थे कि ये जो एंटी करप्शन वाली अंडरस्टैंडिंग है, तो कितना ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। और हमें से बहुत सारे लोग इतना कमाते हैं कि हमारे घरों को छोड़कर भी 1-2 घरों में और थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। लेकिन शायद वो समझ नहीं है और ना ही शायद वो एटीट्यूड है, इसके कारण से हम नहीं कर पाते। हमें यही लग रहा होता है कि हमारे पास तो हैचबैक ही है, किसी के पास सेडान आ गई या किसी के पास कन्वर्टिबल आ गई है, एसयूवी आ गई है, हमें उसके साथ कॉम्पीट करना है। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारे पास हैचबैक है, हमारी लाइफ चल पा रही है और हम किसी को थोड़ा-सा अगर दे देंगे तो उसका भी पेट भर जाएगा या उसको भी छत या कपड़े मिल जाएँगे, जिससे काफ़ी हेल्प हो जाती है एज़ अ सोसाइटी। और सिखिज़्म की तो ये बहुत बड़ी खासियत रही है दैट दे आर द पीपल हू आर स्टालवर्ट्स ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म, जो कि कम्युनिटी वेलफेयर और कम्युनिटी हेल्प में इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इनफैक्ट हमने एक बार एनएसएस की एक टीम भी भेजी थी जो अमृतसर गई थी और वहाँ पर भी उन्होंने जो है हेल्प किया था। तो मेरे ख्याल से सभी लोग वहाँ पे जाके हेल्प करते हैं। आई हैव आल्सो विजिटेड ओवर देयर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इतनी अच्छी चीज़ है कि आई कैन नॉट इवन हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मेरे ख्याल से परमजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। परमजीत जी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे अभी बात कर रहे हैं तो एक यात्रा अभी वीरेंद्र जी मेरे से फोन आया थोड़ी देर पहले जी। तो ये कह रहे थे हमने अमृतसर में गया नहीं अभी तक, तो हम एक ग्रुप यात्रा प्लान कर सकते हैं अमृतसर की। तो इसमें 2 दिन 3 दिन रहें और अमृतसर के पास बहुत ज्यादा गुरुद्वारे हैं जिसमें हम जी। दर्शन करके इतिहास दे सकते हैं। जी, जी, और जी, एक यात्रा मेरा दिल है भी कश्मीर की करें, जो वहाँ के मंदिर है ना, जी। मेरा देखने का वो बहुत दिल करता है। वीरेंद्र बिल्कुल जी से सर, मेरी बात बिल्कुल। होती रहती है तो वीरेंद्र जी तो जाते रहते हैं तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम मुझे साथ लेके जाना। वीरेंद्र जी इनफैक्ट आपका आपको स्वागत है। इंट्रोड्यूस वीरेंद्र जी जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो वो कह भी रहे थे दैट यू आर अ ट्रैवलर एंड यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ ट्रैवलर रादर देन अ टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट यस वो सर। चीजें नहीं देख पाता या समझ पाता है जो एक ट्रैवलर देख पाता है और समझ पाता है। और जिस जी तरीके जी से आपने हमें भी जो है इनवाइट किया तो इस तरीके से ये जो छोटे-छोटे विजिट्स हैं, छोटे-छोटे प्लेसेस हैं या ये जो हमारी लर्निंग्स हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें धीरे-धीरे तो समझ में आ रही है। बट मेरे ख्याल से इसको अगर हम अपने यूथ में भी ट्रांसेंड करें या उनको भी बताने की कोशिश करें, तो दे विल आल्सो अंडरस्टैंड। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दे थिंक कि वो उसको नहीं समझ सकते हैं। और बिल्कुल सही बात हम है जी। अपनी यूनिवर्सिटी में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि विकल्प का प्रोग्राम चलाते हैं, इसी तरीके से हमारा जो स्कूल है, स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड कल्चर, इट आल्सो ट्राइज वो पूरी तरीके से जो है हम कोशिश करते रहते हैं कि अपने बच्चों को ह्यूमैनिटेरियन वेज को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इंजीनियर तो बन जाएंगे, पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन जब खुशी नहीं होती है, सुख नहीं होता है और प्रॉब्लम में रहते हैं, तो फिर समझ में आता है कि देयर इज अ नीड फॉर रिलीजन, देयर इज अ नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी, देयर इज अ नीड फॉर फिलॉसफी और वही वेरी चीज ब्यूटीफुल, जो वेरी है आपको नॉर्मल रख पाती है। बहुत अच्छे आपने तो बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं आप सही बात है। सभी का जो है ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड कल्चर, ऑन बिहाफ ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान एट श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, आर्ट्स। गुरचरण जी कुछ कहना चाहते थे? गुरचरण जी कुछ कहना चाहते थे?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुरचरण जी आप बोलना चाहते थे, कुछ कह रहे थे? मैं तो इनके विचारों को सुन रहा था, तो गुरदीप जी का माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, हाँ, तो मैं मैं इसलिए गुरदीप जी भी, के ये माइक बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो गुरदीप जी का माइक मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ, अब ठीक है। मैं बस यही कहना चाहता था, जो आपका आज का ये जो प्रोग्राम है, एक तो आप सभी प्रबंधकों को मैं नमन करता हूँ कि आपने जो रिजिडिटी का जो कल्चर डेवलप हो रहा है, उसको रोकना, उसको ठल पाना, जो आप इंटेलेक्चुअल का काम है वो आप बखूबी निभा रहे हो, क्योंकि गुरबानी का संदेश है, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। हमारे लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं सभी बराबर हैं। ये कुछ एक लोग होते हैं जो हमारे में जो दीवारें खड़ी कर देते हैं हमें। जैसे मैं छोटी सी बात आपसे सिर्फ 1 मिनट की इजाजत हो तो, जी सर, जी सर, बिल्कुल। आपका स्वागत है। गुरु नानक साहब एक गांव में गए, तो उन गांव के लोगों ने बहुत उनकी इज्जत की, बहुत सत्कार किया, बहुत उनकी आवभगत की, उनको खाना खिलाया, उनकी सेवा भावना की। तो गुरु नानक साहब ने उनको कहा भी उजड़ जाओ, आप उजड़ जाओ। अगले गांव में गुरु नानक देव जी का तिरस्कार किया गया, उनको पत्थर मारे गए, गालियां निकाली गई, तो गुरु नानक साहब ने कहा बसते रहो। तो उनके शिष्य कहने लगे भी ये बात हमें नहीं समझ आई, जो लोग तो आपका तिरस्कार कर रहे हैं जी। और जो आपको गालियां निकाल रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आप उनको वरदान दे रहे हो बसते रहो, और जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो आपको आदर दे रहे हैं, आप कहें उजड़ जाओ। तो गुरु नानक साहब ने कहा जब अच्छे लोग उजड़ेंगे ना, तो सारी जगह अच्छाई लेके जाएंगे, वो बाकी जगह को भी अच्छा करेंगे। और ये जो गंदे लोग हैं वो एक ही जगह बसते रहें, ये गंदगी एक ही जगह कायम रहे, क्योंकि गंदगी फैले ना। ये गुरु नानक साहब का बहुत कमाल का मैसेज था। और जो परमजीत जी कह रहे थे भी हमें जाना चाहिए, तो आप जैसे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग जहां भी जाएंगे, तो लोगों के मनों में जो धुंध है, तो लोगों के मनों में जो अंधकार है, जो एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, आप उन दूरियों को कम, इस माध्यम से जो सेमिनार करा रहे हो, इस माध्यम से डायलॉग करके आप एक, जो मैं, ये जो गोष्ठी हो रही है ना, मैं तो ये मानता हूँ ये गोष्ठी का आगाज भी गुरु नानक साहब ने किया था। जो नवतेज जी की जो नॉलेज है उनको मैं सल्यूट करता हूँ। गुरुवाणी में एक वाणी है सिद्ध गोष्ठ, गुरु नानक देव जी की वाणी है सिद्ध गोष्ठ। सिद्धों के साथ गोष्ठी की थी गुरु नानक साहब ने। तो गोष्ठी क्या होता है, ये सेमिनार ही तो था। हाँ जी। गुरु नानक साहब ने, हम भी मिलके गोष्ठी कर रहे हैं, तो इस गोष्ठी का जो आगाज है वो गुरु नानक साहब ने ही किया था, जिसका नाम सिद्ध गोष्ठ रखा। तो सिद्धों के साथ क्वेश्चन आंसर का जो दौर चला, गुरु नानक साहब ने उनको भी एक रोशनी दी भी सिद्ध छप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। भी आप सारा कुछ त्याग के पर्वत पे चले गए हो, पर आप खाना खाने के लिए फिर गृहस्थी लोगों के पास जाते हो, तो ऐसे तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे सोसाइटी को। तो गुरु नानक साहब ने काफी प्रैक्टिकली लोगों को शिक्षाएं दी, जिसका हमें अपने अंदर ग्रहण करने की जरूरत है। बाकी गुरु नानक साहब के बारे में तो जितनी बातें करें बहुत कम है। तो मैं निजी तौर पे वीरेंद्र बांगड़ू जी का, आप लोगों का जो आपने इस सफल आयोजन किया सेमिनार का, मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज बहुत अच्छा पर्व है और आपने उस महान फिलासफर को याद करके हमें भी रोशनी प्रदान की। आपका धन्यवाद। सर मैं धन्यवाद, एक धन्यवाद। बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो जो बातें अभी डॉक्टर साहब ने कही, वीरेंद्र जी ने कही, तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि एक हमारा जो फलसफा है नानक सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए, ब्रदरहुड, ये जो भाईचारा है आपस में, इसको हमें कायम रखना है। तो जो सिद्ध गोष्ठ की बात की, एक मैं आपको बात कहूंगा, और दूसरा ये आपने कहा कि हम कश्मीर आएंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर की तरफ से धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ। जी। और जो वहाँ का आर्किटेक्चर काम है, जैसे हमारे मंदिर हैं यहाँ पे, शंकराचार्य मंदिर जो 12वीं सदी में बनाया है, आई मे बी रॉन्ग, तो वो देखने के लायक है। और वहाँ पे कैसी वो उस वक्त वो लोग कैसे इतने इतने बड़े पत्थर ले गए, वो देखना है। और दूसरी बात, गुरु नानक देव जी के हवाले से मैं कहूँगा कि मटन साहब देखना बड़ा जरूरी है।
क्योंकि अनंतनाग में ना। लंदन में ही सबसे पहला जो सिख है वो था ब्रह्मदास, who became the अच्छा जी। first follower in कश्मीर। और ब्रह्मदास का साथी था कमाला। ये पहले 2 सिख कश्मीर में बने हैं जो गुरु नानक देव जी के फॉलोअर बने हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मजहब सारे अच्छे, कोई मजहब बुरा नहीं, लेकिन गुरु नानक देव जी की एक बात इधर याद रखने लायक, वो है ये सिद्ध गोष्ठ की बात इन्होंने की, जो रुद्र हिमाल के वो गढ़वाल इलाके के ऊपर जो पहाड़ियां हैं वहां गुरु नानक देव जी गए तो सिद्धू वहां भाग गए थे जैसे इन्होंने कहा। तो सिद्धू ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि भाई तेरा कौन गुरु, किसका तू चेला, तेरा गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी से कहा आप किसके चेले हो? तो गुरु नानक देव जी ने बड़ा एक सिंपल सरल उत्तर दिया, शब्द गुरु सर्वोत्तम चेला। अगर आप शब्द जो है शब्द गुरु, आप गुरु को शब्द को गुरु बना, तो शब्द क्या है? जो भी आपकी फिलॉसफी गीता में है, कुरान में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, वो शब्द है। उस शब्द को हमें पढ़ना है। शब्द गुरु सुरत तुम चेला। और आपकी सुरत जो है, यानी आपका जहन जो है, आपके जो आदर्श हैं, वो उसका कौन- चेला बन जाए। कॉन्शियस। उससे ये चीज हमें हर मजहब में याद है। यही गुरु नानक देव जी ने जो कंक्लूड किया बड़ी ब्यूटीफुली। तो ये हमें वी शुड प्रैक्टिस दीज थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। तो आप Very सबका धन्यवाद। और इन फ्यूचर यू मस्ट कंडक्ट सच प्रोग्राम्स टू गेट यूनाइटेड द सोसाइटी with a Yes, yes. pure and point aim that we should build up a strong nation in adherence with good principles. गुड, वेरी गुड। So ये nice, हमारा so ये- nice. Thank you, sir. Thanks a lot. थैंक यू नवदेव जी। थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सारे अंदर जी, थैंक यू। In fact, literally, it is an amazing experience to host you all people over here. क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो सो कॉल्ड एकेडमिक्स है या सो कॉल्ड सो डैम टेक्निकल एकेडमिक्स हैं, उससे बाहर निकल के थोड़ी सी सिंप्लिसिटी को एम्ब्रेस करें और कोशिश करें कि ये जो एकेडमिक्स भारी भरकम भाषा में बहुत सारी चीजें बोलता है, इसको थोड़ी सिंप्लिसिटी से लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई या कोई भी टेक्निकलिटी जो है वो एक्चुअली लाइफ को और लाइफ के जो मोड्स हैं उसको सिंप्लीफाई करने का काम करती है। तो हम एकेडमिक्स में एंटर करके करते क्या है कि उसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं और अपनी वर्चस्व को कायम रखने के लिए उसको किसी को समझने भी नहीं देते। फिर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो है कुछ ज्यादा ही काम की चीज बोल रहा है क्योंकि मुझे तो समझ में आ नहीं रही है, तो वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। बट अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके जनमानस तक पहुंचा पाए तो उससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई डीड नहीं है और उससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई सर्विस भी नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि हमारी स्कूल, मतलब हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को स्कूल कहा जाता है, स्कूल ऑफ फिलोसफी है जैसे, तो हमारा स्कूल जो है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि हम जनमानस तक की चीजों को थोड़ा सा लेके उस पे थोड़ा सा डिस्कशन करें सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट प्राप्त हो पाए। तो मैं वही कह रहा था एंड इन द एंड आल्सो एंड फॉर द कंक्लूजन आल्सो आई विल लाइक टू से कि जिस तरीके से हमारी ये कोशिश रहती है और हम जब भी, और जैसे देखिए कितनी अच्छी बात है आप सारे लोगों ने जो है इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट किया। और आप देखिए कि दिस program is organized by Virendra Bangru ji, who is not a Sikh. Similarly, is participated by a person Inayat Gul Sahab, who is also not a Sikh. और हम सारे ही लोग जो हैं इस पूरे प्रोग्राम में जो है उसी तरीके से इंक्लूडेड हैं जैसे कि आप सब हैं, being a Sikh, because this is not about religion, this is about philosophy, about the learnings and teachings of a great poet and saint. और इनकी learnings के लिए ऐसा नहीं, जैसे हम श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में रहते हैं और मुझे जो है 28 बार वैष्णो देवी जाने का मौका मिला, बिकॉज मैं यहाँ पे लोकल सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मेरे जितने भी दोस्त और रिलेटिव्स आते हैं मैं उनके साथ वैष्णो देवी चला जाता हूँ। एंड हम भी आएंगे फिर।
And I see so many people from different religions, especially from Sikh community, जो हमारे वैष्णो देवी में आते हैं और वो दर्शन करते हैं, और इसमें कोई हमारा, कोई आपका, कोई इसका, कोई उसका नहीं होता, ये सबका होता है, क्योंकि जी। सारे रिलीजन एक ही चीजें बताते हैं या टीच करते हैं, प्रीच करते हैं। वो तो कुछ, जैसे गुरचरण जी ने भी कहा, ये बात सही है कि कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो कि वो बीचों में दीवार इकट्ठा करा करके और लोगों को जो है फूट डाल के एक दूसरे को जो है एक दूसरे से लड़वाते हैं। नहीं तो बेसिकली there is nothing which Navdeep Singh जी कह रहे हैं, there is nothing which can stop us from becoming an integral as well as a very strong nation, built with nationalism as well as built with that, जिसको हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, है ना। तो हमारे यहाँ कॉलोनी में नहीं, हाँ जी, हमारे यहाँ कॉलोनी में एक फैमिली है, मतलब हिंदू और सिख सेम ही है, मुझे नहीं लगता भी अलग अलग है। बिल्कुल, उनका जो फादर साहब है वो हिंदू है, बड़ा बेटा सिख है, छोटा बेटा हिंदू है। क्या बात ऐसे यहाँ पे बड़ी फैमिलीज हैं, हाँ, बहुत फैमिलीज बिल्कुल, यहाँ पे, वो जो आपका आगरा हो बहुत तो मैं नेचुरल आपको तो है मिला भी दूं, जी। आपको मैं मिला भी दूंगा फैमिली ऐसे। बिल्कुल, ये जो है ये बहुत नेचुरल है समझना, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है इस चीज को नहीं समझ पाते हैं या शायद उसके बीच में इकट्ठा करते। एनीवेज, बट इन द एंड आई विल रियली लाइक टू थैंक, मतलब मैं नॉर्मली क्या होता है, एंड मतलब दिस इज आई समथिंग व्हिच आई कैन डिस्क्लोज, यूजुअली सारे वेबिनार्स में मैं पूरी तरीके से नहीं पार्टिसिपेट कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई प्री से ऑक्यूपेशंस एंड ऑल, लेकिन आज मेरे पास एक छोटा सा काम था, लेकिन आप लोगों को जब मैंने बोलते हुए सुना तो मैं यहाँ से मूव ही नहीं कर पाया। और आप देख रहे हैं कि, और ये वीरेंद्र बांगू जी कैन राइटली से दैट मेनी टाइम्स आई स्टार्ट द कॉन्फ्रेंस, देन आई लीव, देन आई कम लेटर, और मे बी समटाइम्स आई कैन नॉट इवन कम लेटर। मैं वीरेंद्र बांगू जी को ही कहता हूँ कि आप ही जो है प्रोग्राम को कंप्लीट कर दीजिएगा या वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। But today I am glad to be presenting the vote of thanks to all of you, because जिस तरीके से गुरचरण जी ने स्टार्ट किया, उसके बाद गुरदीप जी आए, फिर नवतेज जी आए, परमजीत जी ने हमारे साथ जो है अपना शेयर किया, एंड आई एम रियली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, संदीप जी आ रहे थे, जा रहे थे, तो वो जुड़ नहीं पाए, मेरे ख्याल से भूपिंदर साहब भी जो है नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, उनको हमने मिस किया। लेकिन द थिंग इज दैट द वे यू पीपल स्पोक एंड यू केम आउट विद दोस इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो हमारा वेबिनार जो है सफल हो पाया प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ योर पार्टिसिपेशन एंड बिकॉज ऑफ द थिंग्स व्हिच यू हैव शेयर्ड। सो आई एम from the core of my heart, I will like to thank all of you, all the speakers, and also वीरेंद्र बांगड़ू साहब, जिन्होंने कि इतना अच्छा कोऑर्डिनेट किया इस कार्यक्रम को और आप सभी स्पीकर्स को लेकर आए। और परमजीत जी, मैं आपको एक स्पेशली एक चीज कहना चाहूंगा कि आप श्रोता से भी अच्छे वक्ता हैं, तो आप थैंक यू प्लीज सर, थैंक कभी यू। कभार हमारे साथ इस तरीके से अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं बीइंग अ ट्रैवलर भी शेयर करिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। तो थैंक यू जी, थैंक यू परमजीत जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। and thank you KJ Satta Saab as well, who has joined us, but I guess so there is some technical problem, therefore he could not speak, and the people who could not join us as well. I will like to thank all of you, as well as the participants who came from outside. They were here, but I guess so right now they are not here, from our university, the student staff as well as faculty members, along with some faculty members who has joined from outside as well. So I will like to thank all of you, and I will also like to thank the registrar of this university, Shri Nagendra Singh Jamwal Saab, as well as the honorable vice chancellor of this university, Professor Dr. R.K. Sinha Padma Shri, who has given us the opportunity as well as the administrative support to conduct such kind of programs. So again, I will like to thank you all for being here, and I really want to host you guys in person as well, क्योंकि अभी तो ये ऑनलाइन कल्चर चल रहा है, खत्म होने वाला है, हम फिर से ऑफलाइन पे आ जाएंगे, और जब हम ऑफलाइन पे आ जाएंगे तो वी आर प्लानिंग टू होल्ड seminars and conferences on these issues and a lot of other issues which we have already taken up. So I, along with Dr. Virendra Bangru Saab from IGNCA, will be holding a lot of seminars and conferences, say beginning next year. So we will like to host you again, and please offer and share your blessings to us always and every time when we require you for our programs. Thank you so much, sir. Thank you so much, Thanks, sir. all of you. Thank you. जो बोले सो निहाल।
सत श्री सत अकाल। श्री अकाल। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। भाई थैंक यू जी। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।